Now, let's proceed with the next situation. Here I am trying to explain you about angle of repose and angle of incline. This is an incline at an angle of phi with horizontal. This is a rough inclined plane. A rough inclined plane. And over this rough inclined plane, we have got a block placed, and this block is having mass m. We have got a block of mass m placed over this rough inclined plane, and coefficient of friction between block and rough inclined plane is mu. Mu is coefficient of friction. Now, first of all, if this angle phi is greater than theta, that is angle of repose or the angle of incline, then what would be the acceleration of the block? If phi is greater than theta or greater than alpha, that is angle of repose or angle of incline, then acceleration of block over the incline. What is acceleration of block over the incline? Now, this is the situation. Now, सबसे पहली बात, if this phi is just equal to alpha, if phi is equal to alpha, block would just start moving with zero acceleration. Block just start moving with acceleration zero. While if, आगे हम देखेंगे, if phi is less than alpha, यदि यह phi less than alpha हो, this block would never move over incline. Block never move over the incline. यह ब्लॉक इस इंक्लाइन पर मूव करेगा ही नहीं. यह ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर मूव तभी करेगा if this angle is greater than alpha. If this angle is greater than repose. और यदि यह एंगल ग्रेटर देन रिपोज है और यह ब्लॉक इस इंक्लाइन पर मूव करता है, तो मूव करते समय इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है. देखिए, अब हम समझाते हैं. वंस अगेन आई ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. In order to draw free body diagram, I'll represent all the external forces. एक external force, it's gravitational force, and it would act in vertically downward direction like this. mg, this is gravitational force, and it would act in vertically downward direction like this. And another external force is normal reaction exerted by the inclined plane, and it would be perpendicular to incline. In this situation, normal reaction would act in this direction. This is the normal reaction.
this is the direction, it will have some magnitude, and mg will be in this direction. हम ट्रिग्नोमेट्री से या बेसिक ज्योमेट्री लगाकर यह बात समझ जाएंगे कि यह एंगल फाई होगा mg का. Beside it, is there any other external force? Yes, there is one more external force. Since it's a rough inclined plane, hence this rough inclined plane would offer frictional force. यह rough inclined plane frictional force offer करेगा. This block would accelerate in this direction, down the inclined plane. The acceleration of the block is down the inclined plane in this direction. It's A. Since this block is moving in this direction, against the motion of the block, inclined plane would offer frictional force on the block against this motion, and this frictional force would be maximum frictional force. It would be equal to mu into n. इस जगह पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ब्लॉक के ऊपर, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वुड एक्ट, क्योंकि यह मूव कर रहा है. काइनेटिक फ्रिक्शन वुड एक्ट and maximum kinetic friction is mu into n. Here mu is the coefficient of kinetic friction. Mu is the coefficient of kinetic friction. Ab, this is the complete free body diagram. Now I need to frame the equations, I need to write the answer. Equation बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करना है और दो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग इक्वेशन बनाना है. हम कहते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सेस तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन होगी और दूसरी कोऑर्डिनेट एक्सेस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. हमें नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है. हमें फ्रिक्शन फोर्स के साथ कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. हम कोऑर्डिनेट एक्सेस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लेना चाहते हैं. इस सिचुएशन में ये जो mg फोर्स है, mg फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज नाइदर along the incline nor perpendicular to incline, will resolve this gravitational force in two perpendicular direction along the two chosen coordinate axes. हम एक और बार इस फ्री बॉडी डायग्राम को रीड्रॉ कर रहे हैं. इस बार हम mg को रिजॉल्व करके ही दिखाएंगे. यह ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन और यह फ्रिक्शनल फोर्स, इनको हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करा. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट इज म्यू इंटू एन. और हम mg को अब रिजॉल्व करके दिखा रहे हैं. mg का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन. इस तरह से हमने mg को रिजॉल्व करके दिखाया. दिस इज mg cos phi and this is mg sin phi. इस तरीके से हमने इसे रिजॉल्व करके दिखा दिया. अब आप देखिए, हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos phi. यह लिखा जा सकेगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos phi. और जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स है जो वहां पर एक्ट कर रहा है, दैट इज म्यू इंटू एन. और n की जगह पर मैं यह लिख दूंगा म्यू इंटू mg cos phi. और हम कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स इज mg sin phi. इस mg sin phi की वजह से यह ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ a एक्सीलरेशन से आ रहा है. दिस mg sin phi इज द ड्रैगिंग फोर्स. यह mg sin phi ही इस ब्लॉक को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है. इसकी वजह से यह एक्सीलरेट हो रहा है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर रहा है. हम कहेंगे mg sin phi माइनस fr max is
the net accelerating force, this must be equal to mass of block into acceleration of the block. हम यह इक्वेशन लिख सकते हैं. एंड फाइनली Fr max की जगह पर यह मैं लिख देता हूं mg sin phi माइनस म्यू mg cos phi is equal to ma. थ्रूआउट मास m टर्म कैंसिल करा जा सकता है और फाइनली आई कैन ऑलवेज राइट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g sin phi माइनस म्यू g cos phi, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g इंटू sin phi माइनस म्यू cos phi. दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक. अब एक खास बात, यदि यह इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होता, इफ दिस इंक्लाइन प्लेन वुड बी स्मूथ, इफ म्यू इज 0, तो इस इंक्लाइन प्लेन पर इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन होता g sin phi. इफ इट्स स्मूथ incline, mu is equal to 0. यदि यह स्मूथ इंक्लाइन होता और म्यू इक्वल टू 0 होता तो एक्सीलरेशन होता g sin phi. But if it is a rough inclined plane with finite value of mu, this acceleration is g sin phi minus something. Means this acceleration is less than g sin phi. It means स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर यह ब्लॉक मैक्सिमम एक्सीलरेशन g sin phi से नीचे की तरफ गिरेगा, जबकि रफ इंक्लाइन प्लेन होने से, फ्रिक्शन फुल इंक्लाइन प्लेन होने से, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, अपोजिंग फोर्स की वजह से इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कम हो जाएगा. फ्रिक्शन इस ब्लॉक को, इसकी एक्सीलरेशन को कम कर देगा और इतने मैग्नीट्यूड से इसका एक्सीलरेशन कम कर देगा. यह ब्लॉक जब नीचे गिरेगा तो यदि स्मूथ होता तो कुछ ज्यादा ही वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरता, जबकि फ्रिक्शन होने की वजह से यह ब्लॉक धीरे धीरे नीचे गिरेगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. फ्रिक्शन इस ब्लॉक की एनर्जी को खाएगी, इस ब्लॉक की एनर्जी को कंज्यूम करेगी और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लूज होगी. उस एनर्जी के लूज होने से यह इंक्लाइन प्लेन भी हल्का हल्का गर्म होएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. यह ब्लॉक भी हल्का हल्का गर्म होएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. वहां पर ब्लॉक की कम होती हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट एनर्जी में, दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होएगी. बिना फ्रिक्शन के यह ब्लॉक g sin phi, मैक्सिमम इज g sin phi, एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ गिरता, मगर फ्रिक्शन की वजह से यह एक्सीलरेशन कम हो गया है. कितना कम हो गया है वह मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है. तो ध्यान से सिचुएशन को देखिए. मैं वंस अगेन एक और सिचुएशन समझाता हूं, एक और सिचुएशन बताता हूं. खास बात, यह ब्लॉक इस इंक्लाइन के ऊपर गिरेगा तभी जब इंक्लाइन का एंगल, एंगल ऑफ रिपोज से एंगल ऑफ इंक्लाइन से अधिक होएगा. यदि यह फाई की वैल्यू अल्फा के ठीक बराबर हो गई तो यह ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना चालू करेगा और उसका जीरो एक्सीलरेशन के साथ नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ स्लाइड करेगा. और यदि एंगल ऑफ इंक्लाइन ये अल्फा से कम हो जाए तो ब्लॉक स्लाइड ही नहीं करेगा. मैं आगे इसी सिचुएशन पर एक प्रॉब्लम और देता हूं, पहले इसे नोट डाउन कर लो.
Now let's further proceed with the next concept. Once again, an inclined plane rough inclined plane with angle phi kept with a block of mass m over it. Coefficient of friction between block and rough inclined plane is mu. This is a rough inclined plane having angle phi with horizontal. There is a block of mass m and coefficient of friction is mu. Now, here this angle phi is less than alpha. Angle of repose or angle of incline. So what do you conclude? We conclude that this block would not move. Hence, block would not move. यह ब्लॉक मूव नहीं करेगा. Now, my question is, what minimum force along the incline is needed to move the block up or down? My question is, minimum force needed along the incline to move the block. Case 1 up, case 2 down. यदि इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना है तो मिनिमम फोर्स क्या होगी, और यदि इस ब्लॉक को नीचे ले जाना है तो मिनिमम फोर्स नीडेड क्या होगी. दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द क्वेश्चन. अब देखिए, सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल फाई है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है. इंक्लाइन प्लेन का जब एंगल ऑफ फाई एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो यह ब्लॉक इस पर सिर्फ ऐसा कैसे रखा रहेगा और वहां पर फ्रिक्शन इस ब्लॉक को नीचे की तरफ मूव नहीं होने देगा, नीचे की तरफ एक्सीलरेट नहीं होने देगा. इस सिचुएशन में हम कहते हैं ये जो mg है, mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल टू इंक्लाइन mg cos फाई होता है और अलोंग द इंक्लाइन mg sin फाई होता है. एंड दिस mg sin फाई इट्स नॉट सफिशिएंट टू ड्रैग द ब्लॉक. यह जो mg sin फाई है यह इस ब्लॉक को ड्रैग करने में, इस ब्लॉक को नीचे ले जाने में सफिशिएंट नहीं है और वहां पर फ्रिक्शन, अवेलेबल फ्रिक्शन काफी अच्छा है, काफी अधिक है, जो इस ब्लॉक को नीचे नहीं जाने देता है. इस वजह से यह ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा. अब हमसे पूछा गया है कि यदि इस ब्लॉक को नीचे की तरफ ले जाना है तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना होगा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, और यदि इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना है तब मिनिमम फोर्स क्या लगाना होगा. चलिए हम सॉल्व करते हैं. केस 1, टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. इस ब्लॉक को इंक्लाइन के ऊपर ले जाने के लिए मैं यह ब्लॉक बना लेता हूं, इंक्लाइन बना लेता हूं, यह एंगल फाई है.
मैं mg को रिजॉल्व करके ही दिखाऊंगा। यह mg फोर्स है और इसे रिजॉल्व करके ही इंडिकेट कर देता हूं। दिस इज mg cos phi and this is mg sin phi। और वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगी। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। This is the normal reaction. Now, in order to move or in order to slide the block up the incline, हम एक फोर्स इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से एक फोर्स लगाएंगे। और जब इस तरह से फोर्स लगाएंगे और यह ब्लॉक इंक्लाइन के ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स डाउन द इंक्लाइन, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स इसे ऊपर जाने से रोकेगी और ऊपर जाने से रोकने के लिए यह फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगी। ऐसे जरा देखिए सिचुएशन को। अब हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos phi। नॉर्मल रिएक्शन mg cos phi है। टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन, दिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin phi प्लस fr max। For minimum condition of force, for minimum F, this F must be equal to mg sin phi plus fr max mu into n। मैं ग्रेटर देन साइन हटा के इक्वालिटी ले लेता हूं। दिस वुड गिव अस द मिनिमम फोर्स कंडीशन, और म्यू एन की जगह पर फिर एन की वैल्यू रख देता हूं। This force must be equal to mg sin phi plus mu mg cos phi, or this force, this minimum value of force must be mg into sin phi plus mu cos phi. This is the minimum value of force in order to move the block up the incline. This is the case 1. Now case 2, let me solve case 2 itself. Case 2, to slide the block down the inclined plane, इस ब्लॉक को यदि इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ ड्रैग करना है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन हैविंग एंगल फाई, ऑन दिस वी हैव गॉट द ब्लॉक। वंस अगेन मैं mg को रिजॉल्व करके ही दिखाऊंगा। हियर वी हैव गॉट mg, और इस mg को रिजॉल्व करके ही दिखाया। mg cos phi, mg sin phi, और नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वही वैल्यू होगी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इक्वेशन येट होल्ड, mg इन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos phi। अब जब इसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एडिशनल फोर्स इस तरह से लगाना होगा, तो यह ब्लॉक नीचे की तरफ ड्रैग होएगा। और जब यह नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ड्रैग होएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स
इसकी डाउनवर्ड मोशन को अपोज करेगी और डाउनवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स वुड स्टार्ट एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन लाइक दिस। इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos अल्फा। अब this downward force must be greater than equal to, अब देखिए Fr अपोजिंग फोर्स है, Fr अपोजिंग फोर्स है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू और आई विल से F प्लस mg sin अल्फा, mg sin phi must be greater than equal to F plus mg sin phi must be greater than equal to Fr max। और Fr max की जगह पर मैं μn लिखूंगा, Fr max की जगह पर मैं μn लिखूंगा और n की जगह पर यह वैल्यू। सो F plus mg sin phi must be greater than equal to mu into mg cos phi। और दिस फॉर मिनिमम कंडीशन मैं इक्वालिटी साइन हटा के मैं ग्रेटर देन साइन हटा के इक्वालिटी साइन ले लूंगा। सो द मिनिमम फोर्स टू ड्रैग इट वुड बी म्यू mg cos phi minus mg sin phi। This is the minimum force needed to slide the block डाउन द इंक्लाइन प्लेन। उस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के नीचे लाने के लिए इतनी मिनिमम फोर्स नीडेड होएगी। अब देखिए ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए फोर्स हमें यह चाहिए थी mg इंटू म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और इधर mg इंटू म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और यह फोर्स हमें एडिशनल फोर्स तब लगानी होगी जब यह एंगल ऑफ इंक्लाइन एंगल ऑफ रिपोज से कम होता। इन दैट केस यह जो mg साइन अल्फा है यह इस ब्लॉक को नहीं नीचे ले जा पाएगी। नीचे ले जाने के लिए हमको एडिशनली इतनी फोर्स और लगानी होगी, तभी वह ब्लॉक नीचे आएगा। और ऊपर ले जाने के लिए हमें इस डायरेक्शन में इस तरह से इतनी मिनिमम फोर्स लगानी होगी, तब यह ब्लॉक ऊपर जाएगा। लर्न दिस सिचुएशन, जरा ध्यान से इसे नोट डाउन करें और मैं आगे की बात समझाता हूं प्लीज।